Hello, my dear students. Good morning and Jai Shri Krishna to all of you. So, myself Rajesh Vadodaria, and I heartily welcome to you in my today's educational YouTube lecture. So, today we are going to discuss about the chemical properties of alkene compound, and in our previous lecture we discussed about the preparation of alkene compound, physical properties of alkene compound, and also we discussed about the geometrical isomerism of alkene compound, right? So there are some reactions, 1 to 7 reactions are the chemical properties of alkene compound as per our NCERT textbook, where we have to learn the another examples, another chemical properties of alkene for the JEE and NEET lecture. So बच्चों, आज के दिन हम ये 7 रिएक्शन है वो एक ही लेक्चर में शायद खत्म ना हो पाए, मगर ये 7 जो रिएक्शन है सातों के सातों हमें एज पर NCERT टेक्स्ट बुक हमें ये पढ़नी होगी, और जबकि ये जो 7 रिएक्शन है वो हम स्पेशली JEE NEET के सेशन में देखेंगे, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइड्रोजिनेशन reaction, hydrogenation of alkene compound. So let's discuss the hydrogenation of alkene. First reaction, hydrogenation of alkene compound. So my dear students, by the name of this reaction hydrogenation, it means addition of hydrogen in alkene. We already studied about this reaction in the preparation of alkane from the alkene. Ready? तो हमने already देख लिया है preparation of alkane में, ठीक है? हाइड्रोजिनेशन करना है, अल्केन बनाना होगा, अल्कीन में से जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड बाय द हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम and nickel catalyst, right? So let's use the example of alkene like CH2 double bond CH2. Ready? CH2 double bond CH2. And when we add hydrogen in presence of platinum or palladium catalyst, where platinum palladium both are act as a hydrogenating agent, they are act as a catalyst, hydrogenating catalyst. Or we can also use here nickel catalyst, but if you remember one thing, if we use nickel catalyst then we have to apply high temperature and pressure. Then by this process, by the breaking of the pi bond between these two hydrogen, here one hydrogen and second hydrogen will connect with this adjacent two carbons and it will convert into alkane like ethane. CH3, CH3, this is ethane. Ready? And this is ethene. Ready? Let's use the another example. Suppose we have CH3 single bond, CH double bond CH2, it is propene. Hydrogen in presence of platinum or palladium, it is hydrogenation reaction. Next one we can use here CH3 single bond, CH double bond CH single bond CH3, it is butene. Similar hydrogen, platinum and palladium. And also we can use here cyclohexene, similar reagent, platinum palladium catalyst and hydrogen reagent. For this hydrogenation reaction we'll get propane from the propene by the hydrogenation process, it is propane. This butene by the hydrogenation process, यहाँ पे आप दो हाइड्रोजन एटम्स ये दोनों हाइड्रोजन पे कनेक्ट हो जाएंगे by the breaking of pi bond. You get CH3, CH2, CH2, CH3, ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन हो जाएगा. यहाँ पे ब्यूटूइन है जो हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन. अगर आप ब्यूट 1 भी यूज कर लो तो भी हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन, क्योंकि सिर्फ पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा. ओके, यहाँ पे सेम आप हाइड्रोजन ऐड कर दो तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन, ठीक है? So these are the hydrogenation reactions of alkene compound. ठीक है? बहुत सारी reactions exceptional होती है इसमें जो JEE नीट में पूछी जाती है, जो हम JEE नीट के सेशन में जरूर देखेंगे. चलो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम दूसरा वाला, और वो हो जाएगा हेलोजिनेशन. यहाँ पे हमने हाइड्रोजिनेशन में क्या ऐड करना है, तो हमारा रिएजेंट होगा हाइड्रोजन एंड कैटालिस्ट इज PT और PD और निकल. ठीक है,
जबकि यहां पे जब हम देखेंगे हेलोजिनेशन, फॉर द हेलोजिनेशन रिएक्शन our reagent is Br2 in presence of CCl4 solvent. CCl4 solvent के प्रेजेंस में आपको ये रिएक्शन करना होगा। क्या होगा देखिए, सबसे पहले अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, अगर हम उसको रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ मीन Cl2 गैस, और Br2 आप कुछ भी ले लो, Cl2 Br2, इट मीन्स वी कैन यूज योर हेलोजन। रेडी फॉर द हेलोजिनेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट, ये हो गया नॉन पोलर सॉल्वेंट बिकॉज बोथ ऑफ दिस रिएजेंट्स आर नॉन पोलर। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होना है। एक Cl ये कार्बन वाला ये कार्बन पे आ जाएगा, दूसरा वाला Cl ये कार्बन पे आ जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। ये हो गया हमारा विसिनल डाइहेलाइड। बच्चों ये जेमिनल डाइहेलाइड नहीं है, ये विसिनल डाइहेलाइड है। देयर आर सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स, सिमिलर हेलोजन फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन ऑफ अल्केन कंपाउंड दैट इज नोन एज विसिनल डाइहेलाइड। तो ये हो गया 1,2 डाइक्लोरोइथेन, जो हमारा हो जाएगा विसिनल डाइहेलाइड। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं हम यहाँ पे। लाइक वी यूज हियर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्या होगा, एक ब्रोमीन एटम यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा ब्रोमीन एटम यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि Br2 है। तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH Br सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ये हो जाएगा 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। ये भी हमारा विसिनल डाइहेलाइड है। बच्चों अभी मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूं जो JEE और नीट में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ये टॉपिक के बेस पे। दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर IMP है बच्चों, JEE नीट के लिए। It is useful for the conformatory test. Conformatory test of alkene, मतलब हमारे पास अल्किन कंपाउंड है या नहीं वो हमें कंफर्म करना है। अगर मैं आपको कोई एक हाइड्रोकार्बन दे देता हूं और मैं आपको पूछता हूं कि बच्चों ये अल्केन है या अल्किन है, आपको पता कैसे चलेगा? तो बच्चों अगर ये अल्किन होगा तो ये Br2 के साथ रिएक्ट होके Br2 का कलर रिमूव कर देगा। मतलब यहाँ पे आप हेलोजन में इन प्लेस ऑफ Cl2 इफ यू यूज Br2 देन द रेड कलर, ब्लडिश रेड कलर ऑफ Br2 विल रिमूव बाय द ब्रोमिनेशन ऑफ अल्किन। मतलब अल्किन का जब पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और Br2 मेड हो जाएगा तो Br2 हो वो Br2 नहीं रहेगा, वो डाइब्रोमो मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, मतलब डाइब्रोमो अल्केन बन जाएगा। तो मतलब कि जब ये Br2 रिएक्ट होगा पाई बॉन्ड ब्रेक करके ये एडिशन हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि अगर ये Br2 जो रेड कलर वाला है, यहाँ पे ये Br2 कैसा कलर है, वो रेड कलर, और यहाँ पे जो कंपाउंड बन जाएगा वो हो जाएगा कलरलेस। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है इफ ब्रोमीन रिएक्ट विद द कंपाउंड देन द रेड कलर ऑफ ब्रोमीन, if the red color of bromine removed by the process then that compound is alkene compound, because when the bromine react with alkene by the addition reaction it will form dihalide, vicinal dihalide and remove the color of Br2, red color of Br2। मतलब ये ऐसा बता रहे हैं कि भैया अगर हमारे पास alkene compound होगा और अगर उसकी रिएक्शन आप Br2 के साथ करते हो तो ये Br2 अल्किन के साथ रिएक्ट हो जाएगा, विसिनल डाइहेलाइड बना देगा, और ये Br2 जब रिएक्ट हो जाएगा तब उसका कलर दूर हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि वो जब Br2 रिएक्ट हो जाएगा तो Br2 ब्रोमीन के फॉर्म में रहेगा ही नहीं, वो हो जाएगा विसिनल डाइब्रोमाइड। ठीक है, कौन सा? Br2 and CCl4। The bromination of alkene act as a confirmatory test of alkene because by the reaction with alkene red color of Br2 डिसअपियर हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पे हमने जो देख लिया हेलोजिनेशन।
आप और एक एग्जांपल भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, जगह नहीं होने की वजह से। अगर मैं यहाँ पे साइक्लोहेक्सिन यूज कर लूँ और यहाँ पे ऐड कर दूं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो हमें मिल जाएगा 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये है हमारा साइक्लोहेक्सिन, और ये हो जाएगा 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है, 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, क्योंकि आपको यहाँ पे 1 नंबर देना होगा, यहाँ पे 2 नंबर देना होगा, हो जाएगा 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बच्चों हमने 2 एग्जांपल ले लिए, 2 रिएक्शन कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट वन, जो थर्ड वाली रिएक्शन है हाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, मार्कोनिको एंड एंटी मार्कोनिको रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को ऐड करना है। इट मींस हाइड्रोजन हेलाइड HX, हाइड्रोहेलिक एसिड ऐड करना होगा लाइक HCl, HBr, HI। एंड ऑल्सो हाइड्रेशन, यहाँ पे आपको एसिड के प्रेजेंस में H2O ऐड करना होगा अल्कीन में। मगर बच्चों ये 2 जो रिएक्शन है वो हम लास्ट में देखेंगे। लास्ट में इन द सेंस कि ये सब दूसरी रिएक्शन, ये तीनों की तीनों जब देख लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम ये मार्कोनिको, एंटी मार्कोनिको के बारे में और हाइड्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मगर आज हम नेक्स्ट रिएक्शन जो लेते हैं वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन कंपाउंड। तो अल्कीन का ऑक्सीडेशन करने से हमें क्या मिलता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, okay, so my dear students, let's discuss the another reaction, another chemical properties of alkene, and that is the oxidation of alkene. So बच्चों, ऑक्सीडेशन में हमें क्या करना है, सिर्फ ऑक्सीजन को ऐड करना है, यही ऑक्सीडेशन है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दो वो भी ऑक्सीडेशन होता है, या तो हाइड्रोजन को रिमूव करने के साथ ऑक्सीजन ऐड कर दो वो भी ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अगर आपको अल्कीन का ऑक्सीडेशन करना है, ध्यान से सुनिए, अगर आपको अल्कीन का ऑक्सीडेशन करना है तो हमें उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करना होगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका मतलब स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूं तो मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है। मगर बच्चों, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करके हम अल्कीन का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके अल्कीन का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएंगे। तो आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, सर वो जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन से है? तो लाइक पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, सुनिए, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट वो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको यूज करके हम अल्कीन का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएंगे। CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको यूज करके हम अल्कीन का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएंगे। तो हम किसे यूज करेंगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो होगा हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। बच्चों, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अवेलेबल है, मगर ये चैप्टर के लिए हमें सिर्फ KMnO4 ही यूज करना है, और दूसरे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं आपके सामने नहीं रख रहा हूं। अगर मैंने बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके सामने रख दिए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, जब जरूर होगी तब मैं जरूर आपके सामने बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखूंगा, मगर आज के लिए, ये कॉन्सेप्ट के लिए और ये चैप्टर के लिए, इट मीन्स के 11th स्टैंडर्ड के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, टेंशन मत लेना, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मगर वो जब जरूरत होगी तभी आपके सामने रखूंगा। ठीक है, चलिए, so oxidation reaction of alkene, we can use here 2 oxidizing agents, actually same oxidizing agent KMnO4, but the concentration of KMnO4s are different. So suppose I have alkene like RCH double bond CH R dash। बच्चों ध्यान से सुनना, मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं, आपको यही एग्जांपल यूज करके बहुत सारे जो रिएक्शन लिखूंगा मैं आपको, वो आपको कंप्लीट करने हैं। यहां पे देखिए, R और R डैश दोनों सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। आपको ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन करना है, फर्स्ट वन KMnO4 कॉन्संट्रेटेड। बच्चों ध्यान से देखिए, कॉन्संट्रेटेड है मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, एंड एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, वेयर वी कैन यूज द डाइल्यूट KMnO4। बहुत से ध्यान से देखना बच्चों, KMnO4 दोनों में सेम ही है, मगर आप यहां पे देखिए, ये वाला हो गया कॉन्सेंट्रेटेड और ये वाला हो गया डाइल्यूट। बच्चों ध्यान से देखिए, डाइल्यूट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन से बहुत बार पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। डाइल्यूट KMnO4, वो भी एक्वियस डाइल्यूट KMnO4 एंड 273 केल्विन टेम्परेचर, बहुत ही लोअर टेम्परेचर, 0 टेम्परेचर के आसपास।
मतलब देखिए ये हाई टेम्परेचर पे है, ये 0 टेम्परेचर, बहुत ही चिल्ड कंडीशन में होगा। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 है और यहाँ पे डाइल्यूट KMnO4 है। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगी देखिए, इन फर्स्ट concentrated oxidation, if we use concentrated oxidizing agent KMnO4 at the drastic condition, high temperature, then by the oxidation of this alkene, given alkene, बच्चों ध्यान से देखिए, अगर ये alkene का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो यहां से ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। अगर आप ये कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 यूज करते हो, ठीक है, अगर आप ये कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 यूज करते हो तो ये KMnO4 यहां का बॉन्ड ब्रेक कर देगा और क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से देखिए यहां पे 2 ऑक्सीजन यहां पे दे देगा, 2 ऑक्सीजन यहां पे दे देगा, एक O2 यहां पे दे देगा, एक O2 यहां पे दे देगा इन दोनों को, और हमें क्या मिलेगा देखिए RCOOH, ठीक है। वापिस मैं आपको लिख के दिखाता हूं, यहाँ पे R रेड कलर में ही दिखाऊंगा, CH ये दोनों रेड कलर में दिखा दिए, ऑक्सीजन है ब्लू कलर में, ठीक है। RCOOH वो हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अभी यहां पे देखिए R डैश है, R डैश ये वाला C और ये एक H, इन दोनों के बीच में आ जाएगा O2 ऑक्सीजन, ठीक है। R-COOH ये भी हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन मैंने आपको बता दी, बहुत सिंपल ट्रिक है। ये दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर दो, इसको COOH में कन्वर्ट कर दो, इसको COOH में कन्वर्ट कर दो, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इट मींस वी कैन गेट द मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। सो इसका मैं स्ट्रक्चर है वो मैं दूसरी तरह से लिखना चाहूंगा, C डबल बॉन्ड OOH, आप इसे भी लिख सकते हो यहाँ पे R-C डबल बॉन्ड OOH, ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। बट इफ वी यूज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो सिर्फ ये एक ही पाई बॉन्ड तोड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा एडिशन रिएक्शन। क्या होगा, एडिशन रिएक्शन। ये दोनों के बीच का दोनों बॉन्ड नहीं टूटेगा, सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रांगली उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। मतलब दोनों बॉन्ड सिग्मा पाई दोनों को तोड़ने के बजाय सिर्फ पाई बॉन्ड ही ब्रेक करेगा और ये दोनों साइड एक एक ऑक्सीजन दे देगा। तो हमें क्या मिलेगा देखिए, और यहाँ पे आपको एक्वियस है, उसका मतलब यहाँ पे H2O भी ऐड होगा क्योंकि एक्वियस है। तो हमें क्या मिलेगा देखिए बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है RCH R डैश, और यहां पे हमें मिल जाएगा OH, विसिनल डाई अल्कोहल मिलेगा, विसिनल डायोल मिलेगा आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है विसिनल डायोल। तो ये हो गया डाई अल्कोहल। बच्चों ये रिएक्शन है, ये बेयर रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, बेयर रिएक्शन, Bayer's oxidation of alkene. This reaction is useful to confirmatory test of alkene. ये भी confirmatory test है alkene की, जैसे हमने Br2 को देखा था। Br2 addition of Br2 is one type of confirmatory test of alkene. Similarly, the oxidation, Bayer's oxidation of alkene is also one type of confirmatory test of alkene. So this is the confirmatory test of alkene because purple color of KMnO4 is disappear by this reaction. ये जो रिएक्शन है ये वो KMnO4 का कलर डिसअपियर कर देगा। अगर डिसअपियर हो गया तो समझ लेना उसमें एडिशन हो गया, डिसअपियर नहीं हुआ तो समझ लेना इसमें एडिशन नहीं हुआ, एडिशन नहीं हुआ तो ये अल्कीन नहीं हो सकता, ये अल्केन हो सकता है। अगर डिसअपियर हो गया तो ये अल्कीन होगा। तो यही बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर ये कलर डिसअपियर हो गया मतलब समझ लेना कि अल्कीन रिएक्ट हो गया, सॉरी KMnO4 डाइल्यूट KMnO4 रिएक्ट हो गया बेयर रिएक्शन से। और अगर KMnO4 रिएक्ट हो गया तो समझ लेना ये अल्कीन होगा, अगर रिएक्ट नहीं हो रहा तो ये अल्कीन नहीं होगा। तो ये हो गया confirmatory test of alkene. Ready? So this is the confirmatory test of alkene. It is also useful for the JEE and NEET reaction, JEE NEET exam.
ऐसे रिएक्शंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी होगी बच्चों, कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 यूज कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया, स्पेशली आपको यहाँ पे एसिडिक मीडिया रखना होगा। तो क्या होगा बच्चों, अगर आप एसिडिक मीडिया में ये कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 को यूज करते हो तो ये जो पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे जो कार्बन है वो कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। इट मींस वी विल गेट द मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। And if we use the dilute KMnO4, then that is known as Bayer's reaction. By the Bayer reaction, by the breaking of pi bond, we can get the vicinal dialcohol. Ready? This is the most important reactions for the competitive exam. चलिए आपको एग्जांपल्स देता हूं, आपको फाइनल प्रोडक्ट लिखना होगा लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2। बच्चों और एक मैं बात जरूर करूंगा आपको। चलिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है तो क्या होगा। तो चलिए बच्चों अभी ये अल्किन का ऑक्सीडेशन हम करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया एट हाई टेम्परेचर। तो यहां से सिर्फ क्या करना है, आपको ये बॉन्ड ब्रेक कर देना है। और आपको मैं अभी एक बात बताने जा रहा हूं, आपसे ध्यान से सुनिएगा आप सब। यहां पे मिलेगा हमें CH3 COOH, ये हो जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड। जबकि दूसरा क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर C2H है तो ये हो जाएगा HCOOH, फॉर्मिक एसिड। मगर बच्चों ध्यान से सुनिए, ये जो KMnO4 है ये इतना कॉन्सेंट्रेटेड होगा कि ये जो फॉर्मिक एसिड है उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा, फर्दर ऑक्सीडाइज करके इसको कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड में, और जो हाइड्रोजन है वो H2O के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये बात रखना याद, आपको ये बात याद रखना होगा कि जैसे कि ये बॉन्ड तोड़ के जैसे HCOOH फॉर्म होगा, फॉर्मिक एसिड फॉर्म होगा, सिर्फ एक ही कार्बन वाला जब एसिड फॉर्म होगा तो वो एसिड फॉर्म में ना रहेगा, उसके बदले वो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CO2 ऑक्सीडाइज होके मतलब ये क्या होगा, HCOOH ऑक्सीडेशन, इट मींस एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और वो मिलेगा CO2 और एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ चले जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन हो जाएगा इसका। अगर आपको ये मिल रहा है एसिड तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 यूज कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम डाइल्यूट KMnO4 यूज करते हैं, डाइल्यूट KMnO4 273 केल्विन टेम्परेचर, देन यहां पे पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, CH3 CHOH CH2OH, ये हो जाएगा प्रोपेन 1,2 डायोल, प्रोपेन 1,2 डायोल, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास ये वाला कोई अल्कीन है बच्चों, ये तो क्या होगा। चलिए दोनों एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 एंड हाई टेम्परेचर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो क्या करेंगे, यहां से एक बॉन्ड सबसे पहले तोड़ देंगे, ये हो जाएगा CH3 COOH, एक तो कंफर्म है CH3 COOH, ये होगा हमारा इथेनोइक एसिड। अभी इसके बारे में डिस्कस कर, तो ये वाला जो कंपाउंड है, अगर आप इसमें CH3 तो डबल बॉन्ड है, तो यहां पे आप OOH तो लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां पे अगर आपने कुछ ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया तो कार्बन की वैलेंसी तो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 है। तो बच्चों जब ऐसा आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे ये कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, ये आइसोप्रोपाइल टाइप का फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो इसमें अगर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड पॉसिबल नहीं है तो ये हो जाएगा कीटोन कंपाउंड, लाइक CH3 डबल बॉन्ड O, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ये हो जाएगा कीटोन मतलब प्रोपेनोन। तो हमें ये मिल गया प्रोपेनोन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन करते हैं डाइल्यूट KMnO4 यूज करके बेयर रिएजेंट, तो हमें क्या मिलेगा, CH3 और यहां पे एक आ जाएगा OH, यहां पे आ जाएगा OH, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2,3 डायोल।
2-मिथाइल ब्यूटेन 2,3-डायोल। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। CH3 डबल बॉन्ड CH2। चलिए यहाँ पे हम ऑक्सीडाइज करते हैं KMnO4 कॉन्सेंट्रेटेड H+। तो हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं करना है, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, क्या मिलेगा? ये तो कीटोन बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, प्लस यहां पे तो CH2 है, जो CH2 है वो HCOH बन जाएगा, मगर आपको मैंने पहले ही बताया अगर ये HCOH बनता है तो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या हो जाएगा CO2 + H2O। अगर हम डाइल्यूट KMnO4 यूज करते हैं तो क्या मिलेगा? यहाँ पे OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, 2-मिथाइल प्रोपेन 1,2-डायोल। यहाँ से नंबर आप दोगे इसको 1 2 3, 2-मिथाइल प्रोपेन 1,2-डायोल, तो हमें ये विसिनल डाइअल्कोहल मिलेगा। तो चलिए ये हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के एग्जांपल देख लिए, और 2-4 एग्जांपल एक्स्ट्रा देखते हैं ताकि आपको इजीली ये रिएक्शन कंप्लीट करने, सोल्व करने में इजी हो। ठीक है, उसके बाद हम ओजोनोलिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, अभी हम एक्स्ट्रा एग्जांपल्स यूज करते हैं ताकि आप इजीली ये रिएक्शन को सोल्व कर पाए। चलिए बहुत सारे एग्जांपल लिखेंगे। CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड, यहाँ पे C डबल बॉन्ड लिखता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे हम, चलिए यहाँ पे CH3 लिख के डबल बॉन्ड कर देंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इन चारों का ऑक्सीडेशन हम करते हैं, और चौथी यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ मैं, और एक CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2। चलिए तो दोनों रिएक्शन करेंगे हम KMnO4 कॉन्सेंट्रेटेड हाई टेम्परेचर, ये फर्स्ट रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन होगा डाइल्यूट KMnO4 273 केल्विन, जो होगा हमारा बेयर रिएजेंट। बच्चों अभी मैं क्या करूंगा, सिर्फ 1 और 2 दो ही लिखूंगा, रिएजेंट आप इसमें से पता लगा सकते हो। ठीक है, बार बार ये रिएजेंट नहीं लिखूंगा। तो अभी हम इसका ऑक्सीडेशन करके सबसे पहले इसकी प्रोडक्ट लिखेंगे, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CH3 ये हो जाएगा COOH इथेनोइक एसिड प्लस CH3 CH2 COOH प्रोपेनोइक एसिड। चलिए, मगर हम डाइल्यूट KMnO4 ऐड करेंगे फॉर द बेयर रिएक्शन, तो हमें क्या मिलेगा? CH3 CH, ये भी बॉन्ड CH CH2 CH3, और यहाँ पे एक OH, यहाँ पे एक OH आ जाएगा, OH आएगा। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड। फर्स्ट में क्या मिलेगा? ये बॉन्ड ब्रेक कर दो तो ब्रेक टोटली हो जाएगा, ये हो जाएगा COOH, ये भी हो गया COOH। 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन डाइओइक एसिड, जिसे हम एडिपिक एसिड भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पे हमें मिलेगा 1,2 डाइहाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, चलिए अभी यहां पे हम देखते हैं फर्स्ट रिएक्शन सेकंड रिएक्शन। फर्स्ट में देखते हैं, यहां से बॉन्ड तोड़ दो, ये हो जाएगा COOH, जबकि ये हो जाएगा डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा अलग से लिखता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, क्योंकि अभी तो ये एसाइक्लिक हो गया, CH2 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 COOH। टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 6 ऑक्सो हेप्टेनोइक एसिड, ये प्रोडक्ट मिलेगी। ये बहुत सारे एग्जांपल है जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिए, मगर आपको यूजफुल हो गए। चलिए अभी हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं।
फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट में क्या मिलेगा आपको, CH3CH2 तीन कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोपेनोइक एसिड, जबकि एक ही कार्बन होगा तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा HCOOH, मगर फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 जबकि अगर हम चलिए सेकंड रिएक्शन देखते हैं, CH3CH2 CHOH CH2OH, चलिए ठीक है, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन। अब हम यहां पे देखते हैं फर्स्ट रिएक्शन, यहां से बॉन्ड तोड़ दो, ये हो जाएगा कीटोन, CH3CH2 CCH3 डबल बॉन्ड O प्लस ये हो गया फॉर्मिक एसिड, मगर फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 प्लस H2O। जबकि सेकंड रिएक्शन हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो CH3CH2 CCH3 यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2OH। चलिए ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ आल्किन। चलिए बच्चों, अभी हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं और वो होगा ओजोनोलिसिस ऑफ आल्किन कंपाउंड। चलिए बच्चों, अभी हम देखने वाले हैं ओजोनोलिसिस ऑफ आल्किन कंपाउंड, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है लाइक ऑक्सीडेशन ऑफ आल्किन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है JEE नीट या तो गुजरात बोर्ड और गुजकेट में। ये जो सारी रिएक्शन हम देख रहे हैं लाइक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लाइक ओजोनोलिसिस, ये सभी के सभी 12th स्टैंडर्ड के ऑर्गेनिक के चैप्टर में आपको वापस रिपीट होने वाली है। तो सबसे पहले हम ओजोनोलिसिस करते हैं, जिसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन करना होगा ओजोन मोलेक्यूल का। एक पाई बॉन्ड ब्रेक करके उसमें एक ओजोन मोलेक्यूल ऐड करना होगा, दैट इज द ओजोनोलिसिस, एंड वी विल गेट द ओजोनाइड कंपाउंड व्हिच इज अनस्टेबल। बट after the ozonolysis, in second step we have to hydrolyze that ozonide compound by zinc, then we will get the carbonyl compound at the final product, it means mixture of carbonyl compound। तो हमें कैसे ओजोनोलिसिस करना है वो हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे यूज कर दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। मैं आपको अभी पूरा ओजोनोलिसिस समझा दूंगा, उसके बाद उसकी शॉर्टकट ट्रिक दे दूंगा कि आपको डायरेक्टली कैसे प्रोडक्ट लिखनी होगी। यहाँ पे मैंने ओजोनोलिसिस करना है हमें O3 ओजोन बाय एडिशन ऑफ ओजोन इन आल्कीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरे दोनों के दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, CH2 और दूसरे CH2 के बीच में एक ओजोन मोलेक्यूल अरेंज हो जाएगा। ऐसे अरेंज हो गया, दिस इज द ओजोनोलिसिस, सबकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अभी जैसे हम सेकंड स्टेप में Zn के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O, तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो अभी देखिए क्या बचा हमारे पास, ये देखिए CH2NO प्लस ये बचा CH2NO, जबकि ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन H2O के साथ मिलके H2O तो था और एक ऑक्सीजन जुड़ गया, H2O2 फॉर्म में, पेरोक्साइड फॉर्म में निकल जाएगा। जबकि यहां पे कार्बन की टेट्रावैलेंसी में से ट्राइवैलेंसी सेटिस्फाइड है, ऑक्सीजन की डाइवैलेंसी में से एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है, दोनों की एक एक वैलेंसी कम है, मतलब सेटिस्फाइड नहीं हुई। तो ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बना देंगे। तो क्या मिल गया हमें, देखिए HCHO मिल गया। इसे हम बोलेंगे फॉर्माल्डिहाइड। मिक्सचर ऑफ फॉर्माल्डिहाइड, हमें दोनों सेम ही, इट मींस वी कैन राइट हियर 2 मोल्स ऑफ HCHO, ठीक है, फॉर्माल्डिहाइड। मतलब ये रिएक्शन आपको अगर डायरेक्टली लिखनी है तो सिंपल सी ट्रिक मैं आपको दे देता हूं। क्या करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डायरेक्ट लिखोगे बच्चों, कैसे लिखोगे मैं दिखा रहा हूं, O3 ZnH2O। अभी क्या करना है, हमें सिंपल ट्रिक दे रहा हूं, आप सुनिए। यहां पे आपको ये दोनों के दोनों बॉन्ड तोड़ देने हैं, सिर्फ एक ऑक्सीजन यहां पे देना है, एक ऑक्सीजन यहां पे ओजोन का, एक ऑक्सीजन इसको देना है, एक ऑक्सीजन इसको देना है, एक ऑक्सीजन इसको भी देना है, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो तीनों के तीन ऑक्सीजन डिवाइड हो गए, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या मिलेगा, देखिए बॉन्ड टूट गया तो 2 मोल्स ऑफ CH2O, इट मींस हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ HCHO फॉर्माल्डिहाइड, ठीक है। ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगी। यहां से हमने कार्बोनिल कंपाउंड गेन कर लिया, फॉर्माल्डिहाइड और मीथेनॉल, वी कैन आल्सो यूज हियर वर्ड मीथेनॉल, IUPAC नेम। चलिए बहुत सारे एग्जांपल इसके देखने होंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2CH3। मान लीजिए कि हमने ये एग्जांपल ले लिया, इट इज पेंट टू इन,
सबसे पहले मैं जो लॉन्गेस्ट प्रोसेस है वही मैं दिखाऊंगा। तो ये क्या करेगा, ओजोन है वो ओजोनोलिसिस हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और हमें क्या मिलेगी, जो इंटरमीडिएट ओजोनाइड प्रोडक्ट है वो CH CH CH2 CH3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ओजोनाइड। अभी इसमें Zn प्लस H2O हाइड्रोलिसिस करना है, तो ये वाला बॉन्ड है वो यहां से ब्रेक हो जाएगा, ये दोनों, और एक ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, CH3CHO, CH3CH, और यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, इट मीन्स ये हो गया इथेनॉल CH3CHO, प्लस यहां पे क्या मिलेगा, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड O, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड O, ये हो गया हमारा प्रोपेनॉल। ठीक है, H2O2 एज अ बाय प्रोडक्ट लूज हो जाएगा। तो अगर हमें ये डायरेक्टली प्रोडक्ट लेनी है तो क्या करेंगे, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, डायरेक्टली ये प्रोडक्ट मिलेगी हमें ZnH2O, डायरेक्ट लिख दो, यहां से ये दोनों बॉन्ड तोड़ दो और यहाँ पे एक ऑक्सीजन इसको दे दीजिए, एक ऑक्सीजन इसको देना है और एक ऑक्सीजन इसको दे देंगे, तो जो H2O माइनस H2O2 फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा, CH3CHO CH3CH2 CHO। ठीक है, चलिए और 2-3 एग्जांपल लेते हैं ताकि आप समझ पाए ओजोनोलिसिस रिएक्शन को और आप इजीली उसको सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे एग्जांपल लेते हैं। चलिए बच्चों और कुछ एग्जांपल लेते हैं फॉर द ओजोनोलिसिस रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज हियर CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CH3 CH3। अभी आपको डायरेक्टली शॉर्टकट अप्लाई करनी होगी, H2O Zn। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल मेथड है बच्चों। यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, इसको एक ऑक्सीजन इसको दे दो, हमें क्या मिलेगा, देखो फाइनल प्रोडक्ट लिखना है हमें, क्योंकि आपको अगर MCQ सॉल्व करना होगा तो आपको डायरेक्टली यही प्रोडक्ट टिक करनी होगी। CH3 ये हो गया हमारा CH3CO CH3 प्रोपेनॉन और एसीटोन, कॉमन नेम होगा एसीटोन। जबकि ये वाला प्रोडक्ट कौन सा होगा, CH3 CH CH3 CHO 3CH CH3 CHO, ये होगा हमारा 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल तो बहुत बना सकते हैं हम इसमें, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। चलिए अभी इसका क्या करेंगे, यहाँ पे तो 2 डबल बॉन्ड आ गए, तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, दोनों डबल बॉन्ड के लिए हम ओजोनोलिसिस कर देंगे। जितने डबल बॉन्ड हो जाएंगे वो सभी के सभी ओजोनाइज्ड हो जाएंगे ZnH2O। तो हमें क्या करना होगा, ये बॉन्ड भी तोड़ना होगा, ये बॉन्ड भी तोड़ना होगा। ठीक है, और अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन यहाँ पे दे दो। जबकि ये बॉन्ड तोड़ दिया तो एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक यहाँ पे दे दो, तो हम क्या मिलेगा, CH2O। चलिए HCHO प्लस यहाँ पे क्या होगा, CHO CH2 CHO। ठीक है, CHO CH2 CHO। चलिए CHO CH2 CHO, मतलब ये हो गया प्रोपेन 1,2 डायल, यहाँ पे हो गया मीथेनॉल। जबकि ये क्या होगा, ये CH2O, मतलब मीथेनॉल ही होगा, तो हमें यहाँ पे 2 मोल मिल जाएंगे। बहुत ही सिंपल है। और एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 CH3। चलिए अभी हमें इसका ओजोनोलिसिस करना है। हम क्या करेंगे बच्चों, 2 मोल्स ऑफ O3 Zn प्लस H2O। सिंपल ट्रिक मैंने पहले बता दी, बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ पे तोड़ दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक यहाँ पे रख दो। डबल बॉन्ड वाला जितना कार्बन है उन सभी को एक एक ऑक्सीजन आपको देना होगा। तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CHO, सबसे पहली प्रोडक्ट इथेनॉल, बाद में CHO सिंगल बॉन्ड CHO। चलो ये हो गया ग्लाइओक्साल, और इथेन 1,2 डायल भी बोलेंगे हम इसको, इथेन 1,2 डायल है, और इस पर IUPAC नेम एंड कॉमन नेम इज ग्लाइओक्साल। देन आफ्टर CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 एसीटोन,
ठीक है, चलिए अभी साइक्लिक एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक डबल बॉन्ड अल्कीन। ओजोनोलिसिस कर दो, ZnH2O, कुछ नहीं करना है बच्चों, तोड़ दो ये पाई बॉन्ड, ये हो जाएगा CHO, ये वाला भी हो जाएगा CHO, ठीक है, ये पाई बॉन्ड टूट गया, CH2 ये हो जाएगा हेक्सेनडाइल, ठीक है। चलिए और एक लास्ट वाला एग्जांपल लेते हैं, यहां पे लिखता हूं, यहां पे डबल बॉन्ड बना दिया, यहां पे डबल बॉन्ड बना दिया, दो डबल बॉन्ड है, 2 मोल्स ऑफ O3, Zn+H2O, क्या होगा, सोचिए क्या होगा, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, पाई बॉन्ड तोड़ना है, तो हम यहाँ पे एक पाई बॉन्ड तोड़ देंगे, यहाँ पे तोड़ते हैं, चलिए एक ऑक्सीजन इसको देना है, 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 तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये तो बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ से बॉन्ड निकल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, CH2 CHO, ठीक है, और नीचे की तरफ यही आएगा CHO CH2 CHO, दोनों सेम ही है, प्रोपेन 1,3 डायल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओजोनोलिसिस प्रोसेस। तो चलिए बच्चों, ये ओजोनोलिसिस कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे दूसरी जो रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, उसके बाद हमें वो भी देखना होगा हाइड्रेशन रिएक्शन, हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन बाय द मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो आज के दिन हमने कौन सी रिएक्शन देख ली, हेलोजिनेशन देख लिया, हाइड्रोजिनेशन देख लिया, जो हेलोजिनेशन में Br2 का एडिशन है वो कंफर्मेटरी टेस्ट है अल्किन का, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देख लिया जिसमें बेयर रिएक्शन है वो अल्किन का कंफर्मेटरी टेस्ट है, वो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, और ओजोनोलिसिस भी आप देख लिया, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में ये कंटिन्यू प्रोसेस को, कंटिन्यू केमिकल प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।